Hello students, hello everyone. In this video I am going to discuss a very important topic, that is number system. If you are the students of class 11 and you have in ICSE board and you have opted computer science with Java, then this video is going to be very useful for you. In this video I am going to discuss a very important topic of class 11, that is what? Number system. Okay. So without wasting your and my time, just let's start with this topic, that is number system. Okay, see on the screen I have written different number systems. So the first number system I have written here, decimal number system. Okay, so the number system, what is decimal number system? The number system which we use in maths, जो number system तुम mathematics में use करते हो, that number system is what? That number system is called decimal number system. Okay, and this number system has 10 digits. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Only 10 digits are there. And by the help of these 10 digits, all the numbers are formed. Okay. So the decimal number system has how many digits? 10 digits. And so the base of this number system is what? 10. The number of digits is what? Here in this number system, there are 10 digits. This number system has 10 digits. So the base of this number system is what? 10. Generally क्या होता है कि जो जितने number of digits होते हैं किसी number system में वही उसका base होता है. इस number system में 10 digits हैं. So the base of this number system is what? 10. Got it? So जो number system तुम लोग maths में use करते हो, that number system is what? That number system is called decimal number system, and this number system has 10 digits, and the base of this number system is what? 10. Okay, and the base is also called, please remember this word if it is coming in front of you, radix. The base is also called radix. Please remember this if this word is coming in front of you. Okay, so other than decimal number system, there are three more number systems, that are binary number system, octal number system, and hexadecimal number system. Okay, so in binary number system, as you know about this, binary number system has only two digits, 0 and 1. So the base of this number system is what? 2. The base of this number system is what? 2. Like that, we have one more number system, that is octal number system. In octal number system, there are 8 digits, 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 8 digits in octal number system. So the base of this number system is what? 8. Okay. And lastly, we have this hexadecimal number system. In this number system, there are 16 digits. 16 digits. 0 to 9, that are 10. 0 to 9, how many digits? 10 digits over. And for after 9, for 10, capital A is written. Capital A represents 10. For 11, we write, in hexadecimal number system, for 11, we write capital B. For 12, we write capital C. For 13, we write capital D. For 14, we write capital E. And for 15, we write F. So if you count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 digits, A for 10, B for 11, C for 12, D for 13, E for 14, and F for 15. These are 6, and 0 to 9 are 10. So this number system has total 16 digits. So you can say, as you know, as I told, the number of digits will be the base of this number system. So the base of this number system is what? 16. Okay. So please remember this. These are I have introduced all the number systems, their number of digits, and the base of that number system. Okay. So please remember this. Now I am going to discuss the convergence from one number system to another number system. So one by one I am going to discuss in this video. So let's start. So I am going to discuss the convergence from one number system to another number system. So the first conversion you can see on the screen is decimal to binary conversion. Okay, decimal to binary conversion. So the number system, the decimal number system, the number of digits in decimal number system is what? 10, and the base of decimal number system is what? 10. It is indicating that this number is in decimal number system.
and in which to convert into binary. We have to convert from decimal to binary. This I am going to discuss. Conversion from decimal to binary. Listen carefully. 25. This number is in decimal number system. We are going to convert this into binary. So as you know, the base of binary number system is what? 2. So we will divide the number by 2. So quotient will be written here. If we divide 25 by 2, quotient will be 12 and remainder will be 1. Here we write quotient and here we write remainder. Again divide by 2. Always you will divide by 2 only. So quotient will be 6 and remainder will be 0. Again divide by 2. The quotient will be 3 and remainder will be 0. Again divide by 2. The quotient will be 1 and remainder will also be 1. Now see the last calculation. Again divide 1 with 2. So the quotient will be 0 and remainder will be 1. Let me tell you this last calculation. Please remember this. It will be used in the programming. आगे जब जावा वगैरह पढ़ोगे तो उसमें ये सब यूज होगा. So when we divide a smaller integer by a greater integer, I'm talking about integers only. जब छोटे इंटीजर को जब किसी बड़े इंटीजर से डिवाइड करोगे तो कोशेंट हमेशा 0 आएगा. ये कैलकुलेशन होता है और रिमाइंडर छोटा वाला नंबर आता है. इन दोनों में जो छोटा होगा वो आएगा रिमाइंडर और जो कोशेंट हमेशा 0 आएगा जब छोटे इंटीजर को बड़े इंटीजर से डिवाइड करोगे. तो कोशेंट कितना आ रहा है? 0. हमने यहाँ 0 लिखा है. 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 1 को तो कोशेंट 0 आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा. Okay. Now here when we got 0, here we'll stop this calculation and from bottom to top you will write the code. So for 25 which is in decimal number system, the 25 which is in decimal number system will be what? 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 in binary number system. This is the conversion of from decimal to binary. As the base of numbers binary number system is what? 2. So here we are dividing the decimal number system by decimal number by 2. So the second conversion I am going to teach you, decimal to octal. Decimal to octal in the same manner as we were converting from decimal to binary. Decimal to binary जब conversion कर रहे थे तो binary का base क्या था? 2 था. तो हमने नंबर को 2 से डिवाइड किया था. यहाँ पे नंबर का बेस क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? 8 है. तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर है उसको 8 से डिवाइड करेंगे. इन द सेम मैनर सो आई एम गोइंग टू डिवाइड 156. डेसिमल टू बाइनरी में क्या था? डेसिमल टू बाइनरी में जब कन्वर्ट कर रहे थे तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है तो हम 2 से डिवाइड कर रहे थे. यहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 है तो यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे. सिमिलर कन्वर्जन से बस बेस चेंज हो रहा है. तो इसको डिवाइड करेंगे तो 8 1 times, then 7 19 times. The remainder will be 4. If you divide like this, 19. Okay. So quotient will be 19 and the remainder will be 4. Okay, this calculation I was doing. Now divide 19 by 8. 2 times 16, the remainder will be 3. Now again divide 8 by 2. As I told, जब भी छोटे इंटीजर को बड़े इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट 0 आता है और रिमाइंडर जो उन दोनों में छोटा होता है. तो यहाँ पे क्वोशंट आएगा 0, रिमाइंडर आएगा 2 और एकदम वही सेम मैनर बॉटम टू टॉप जाएंगे. 234. तो 156 जो किसमें था? डेसिमल नंबर सिस्टम में था. अब वो क्या हो जाएगा? 234 हो जाएगा किसमें? ऑक्टल नंबर सिस्टम. तो यहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 था तो हमने 8 से डिवाइड किया. क्वोशंट रिमाइंडर क्वोशंट रिमाइंडर क्वोशंट रिमाइंडर हमने लिखा. ठीक है. तो ये था कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल. नाउ नेक्स्ट कन्वर्जन इज decimal to hexadecimal. This conversion I am going to tell you. Decimal to hexadecimal. How to convert from decimal to hexadecimal? Same method. Decimal to binary 2 से डिवाइड किया हमने.
डेसिमल टू ऑक्टल हमने 8 से डिवाइड किया, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है तो किससे डिवाइड करेंगे? सही जवाब 16 से डिवाइड करेंगे। सो 282 इसको डिवाइड करते हैं किससे? 16 से। 16 से डिवाइड करेंगे आई थिंक 17 टाइम्स जाएगा एंड द रिमाइंडर विल बी 10। ठीक है, देन यू कैन कैलकुलेट दिस, यू कैन डू दिस कैलकुलेशन। नाउ 16 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट आएगा 1, रिमाइंडर हो जाएगा 1। फिर 16 से डिवाइड करेंगे और फिर से वही कैलकुलेशन, स्मॉलर नंबर को जब ग्रेटर नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट 0 आता है और रिमाइंडर जो स्मॉलर है वो आता है। तो यहाँ पे क्वोशिएंट 0 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 1, और यहाँ पे 1 1 और 10 के लिए बताया मैंने क्या लिखते हैं? कैपिटल ए लिखते हैं। 11 के लिए क्या लिखते हैं? कैपिटल बी। तो यहाँ पे हमें 10 मिल रहा है तो 10 नहीं लिखेंगे, 10 के लिए क्या लिखते हैं? कैपिटल ए लिखते हैं। इसका मतलब ये कि जैसे 282 जो डेसिमल नंबर सिस्टम में है वो क्या होगा? 11A हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होगा। अगर आप 11th ए में पढ़ते हैं तो ये आपका क्लास का सेक्शन, जोक्स अपार्ट। ओके, सो 11A 11A will be 282 will be 11A in hexadecimal number system. So similar type of conversions, decimal to binary divide by 2, decimal to octal divide by 8, decimal to hexadecimal divide by 16. Okay, now I'm going to teach you what I have taught. Decimal to, what I have taught you, decimal to binary, decimal to binary, decimal to octal, decimal to hexadecimal. This I have taught. Decimal to all others I have taught. Similar type conversions base से divide कर रहे थे। Now vice versa, मतलब बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, ये बताने जा रहे हैं। वाइस वर्सा, डेसिमल टू ऑल हो गया, अब ऑल टू डेसिमल, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। सिमिलर टाइप ऑफ कन्वर्जन्स आई एम टीचिंग टुगेदर। ओके, so let's start without wasting time. Now the next conversion is binary to decimal. So this next conversion is binary to decimal, binary to decimal. So this I'm going to tell you. See, 1 0 1 1 0 1. This is in binary number system. This we are going to convert into decimal. Okay. So 1 1 1 0 1 1 0 1. This I'm going to convert. So count from this side. ऐसे 0 1 2 3 4 5, राइट टू लेफ्ट काउंट कर रहे हैं। 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या रहा है? लास्ट में क्या रहा है? 5 आ रहा है। हियर आई एम काउंटिंग द पावर ऑफ 2 एक्चुअली। 0 1 2 3 4 5, तो ये 1 है। सी दिस, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके, so counting we are getting the highest power is what? 5. So this is 1. So 1 into 2 to the power 5. What I have counted was power of 2. जो 1 2 3 4 5 काउंट किए वो पावर ऑफ 2 था। ये 0 है, प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 4, प्लस ये 1 है, 1 इंटू 2 टू द पावर 3, प्लस ये भी 1 है, तो 1 इंटू 2 टू द पावर 2, प्लस ये 0 है, तो 0 इंटू 2 टू द पावर 1, लास्ट में क्या है? 1 है, तो 1 इंटू 2 टू द पावर 0। जो हमने काउंट किया था वो क्या था? पावर ऑफ 2 था। ये जो काउंट किया था 0 1 2 3 4 5, 5 2 की पावर थी, ठीक है, और 1 था, तो यहाँ पे 1 0 1 1 0 1 मल्टीप्लाई किया हमने, तो 2 टू द पावर 5 की वैल्यू 32 आएगी। 32 इंटू 1 32 हो जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा, जो भी वैल्यू 0 हो जाएगा, ये 2 टू द पावर 3 8 हो जाएगा, ये 2 टू द पावर 4 है तो 2 टू द पावर 2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर 0 की वैल्यू, एनी नंबर टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1 हो। तो इसको सबको ऐड करेंगे तो 32 प्लस 8 40 प्लस 4 44 प्लस 1 45। तो दिस इज द बाइनरी कोड ऑफ 45। ये
डेसिमल में 101101 जो बाइनरी नंबर सिस्टम में था वो डेसिमल में क्या है 45। ठीक है, सो दिस इज बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हम 2 की पावर्स का यूज करते हैं और काउंटिंग ये 0 1 2 3 4 5 की काउंटिंग इधर से करते हैं 0 1 2 3 4 5। तो जो 2 की हाईएस्ट पावर होगी वो 2 to the power 5 होगी। फिर 1 की जगह पे 1 1 0 की जगह पे 0 मल्टीप्लाई करते जाएंगे। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। So this is binary to decimal conversion. Now I'm going to tell you binary to decimal done. Now octal to decimal. So in case of octal to decimal, the same process. Instead of 2, here I'm using 2 base 2 since I'm converting from binary to decimal. In case of octal to decimal, instead of power of 2, there will use power of 8 octal number system. ये डिफरेंस है। सिमिलर टाइप के कन्वर्जन सब साथ में बता रहे हैं। तो कोई डाउट हो तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में फिर भी पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट कन्वर्जन इज ऑक्टल टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल में हमने पावर ऑफ 2 यूज किया। ऑक्टल टू डेसिमल में हम पावर ऑफ 8 यूज करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो उससे मान लो 245, सेम प्रोसेस 245। सो पावर ऑफ 8 काउंट करेंगे इधर से 0 1 2। तो 2 इंटू 8 to the power 2 प्लस 4 इंटू, ये 4 है, 4 इंटू 8 to the power 1 प्लस 5 इंटू 8 to the power 0। उसको कैलकुलेट करोगे 8 स्क्वायर होगा 64, 64 इंटू 2 128 प्लस ये हो जाएगा 32 और 5 इंटू 8 to the power 0 की वैल्यू 1 होगी तो 5 इंटू 1 हो जाएगा 5। इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 128 प्लस 32 विल बी 160, 160 प्लस 5 165। दिस इज इन डेसिमल नंबर सिस्टम। सिंपल सी बात है। बाइनरी टू डेसिमल में हमने 2 की पावर यूज किया है क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है। ऑक्टल टू डेसिमल में हम 8 की पावर्स यूज कर रहे हैं। वही 0 1 2 काउंट किया हमने राइट टू लेफ्ट, 0 2 to the power 8 to the power 0 8 to the power 1 8 to the power 2। सेम प्रोसेस था, बस यहाँ पे पावर ऑफ 2 की जगह पे हम पावर ऑफ 8 यूज कर रहे हैं। सो दिस इज ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। हम for each and every conversion I will give only one example because I am trying to cover all the conversions in this video. So one example I will give. You can repeat it again and again. This video you can repeat and you can understand it. Okay. Okay. The next conversion is hexadecimal to decimal. So same here we are going to use the power of 16. Okay. So let's start. 2A5. So 0 1 2 power of 16 0, 16 to the power 0, 16 to the power 1, 16 to the power 2। So 2 into 16 to the power 2 plus a, as you know a for 10, 10 into 16 to the power 1 plus 5 into 16 to the power 0। So 16 to the power 2 will be what? 256 into 2 512 plus this will be 160 and 16 to the power 0 will be 1, so 5 into 1 will be 5 only. So if you add all these you'll get 7 7 and 5 1 6 677 in hexadecimal, sorry, in decimal number system. So this is hexadecimal to decimal conversion. Binary to decimal we use the power of 2. Octal to decimal we use the power of 8, and in hexadecimal to decimal we use the power of 16. Similar type of conversions. Okay. Now next conversion, I hope it is clear. Now the next conversion is binary to octal. Okay. So now I'm going to teach this conversion binary to octal. So listen, this number is in binary number system. We are going to convert into octal number system. So how to convert it? Listen carefully. You know the base of binary number system is 2 and the base of octal number system is 8. So 2 to the power 3 will be equal to 8.
ओके, अब 3 यहाँ पर समझाने के लिए बता रहे हैं, सब लिखना नहीं है। तो देखो 2 to the power 3 क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे जो 3 है इसका यूज करने जा रहे हैं। इस नंबर में जो बाइनरी नंबर सिस्टम में नंबर दिया है उसमें राइट टू लेफ्ट हम 3 बिट्स का ग्रुप बनाएंगे। 0 1 1 ही हो गया। राइट टू लेफ्ट देखो, एरो का डायरेक्शन देखना, 1 0 1 और एक ये 1 0 1, 3 बिट्स का, 3 बिट्स का हम ग्रुप बनाएंगे। ये 2 to the power 3, ये जो 3 बिट्स है इसका यूज करने जा रहे हैं। 3 बिट्स का राइट टू लेफ्ट हम ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है। और ईच ग्रुप को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का यूज करके, ठीक है। फिर से बताते हैं, हम राइट टू लेफ्ट 3 बिट्स का ग्रुप बनाएंगे और ईच ग्रुप को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का यूज करके। तो फर्स्ट ग्रुप था ये 1 0 1, देखो ये फर्स्ट ग्रुप है 1 0 1। तो 1 0 1 को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी टू डेसिमल में। तो 1 into 2 to the power 2 प्लस 0 into 2 to the power 1 plus 1 into 2 to the power 0. If you calculate all these, you will get what? 5. You can add it. Like that, we have another group, this 1 0 1. This is also the same. So 1 0 1, same thing. 1 into 2 to the power 2 plus 0 into 2 to the power 1 plus 1 into 2 to the power 0. So if you add all these, you will get what? 5. The same thing we have. Now the last 0 1 1. See this last group 0 1 1. 3 बिट्स का हमने ग्रुप बनाया है, सबको अलग अलग कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का यूज करके। 0 into 2 to the power 2 plus 1 into 2 to the power 1 plus 1 into 2 to the power 0. If you add all these, you'll get 3. Okay, so all we have converted each group from decimal binary to decimal conversion. Now for 1 0 1, what we got? 5. For this 1 0 1, what we got? 5. And for 0 1 1, we are getting what? 3. So instead of this we'll write 5, instead of this we'll write 5, instead of this we'll write 3. मतलब ये कि 1 0 1 which was in binary number system will be 5 5 3 in octal number system. 5 5 3 in octal number system. One more thing let me tell you, इससे एग्जाम्पल लिख लेते हैं 1 3 5 6 7 8। मान लो ये नंबर्स है, नंबर है बाइनरी नंबर सिस्टम। थोड़ा सा सुनना ध्यान से, एक चीज बताना चाह रहे हैं। तो इसमें हम ग्रुप बनाएंगे, 3 3 का ग्रुप बनाएंगे राइट टू लेफ्ट। ये 1 1 1 1 1 1। अब यहाँ देखो 2 ही बिट बचा लास्ट में। कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर ऑफ 3 बिट्स हमें नहीं मिलते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं कि हम लेफ्ट साइड में 0 ऐड करके, जितने 0 कम पड़ रहे हैं, मैक्सिमम 2 zeros कम पड़ेंगे, तो लेफ्ट साइड में हम उतने 0 ऐड करके उसको 3 बिट्स का बना लेते हैं। एडिंग 0 टू द लेफ्ट साइड विल नॉट अफेक्ट द वैल्यू। अगर ऐसा होता है कि अगर लास्ट में कोई डिजिट कम पड़ता है, जैसे इसमें क्या था, इस एग्जाम्पल में था कि लास्ट में 2 ही डिजिट मिल रहे थे, तो 2 डिजिट मिल रहा है, तो यू कैन मेक इट ऑफ 3 बिट्स बाय एडिंग 0 टू द लेफ्ट साइड, दैट विल नॉट अफेक्ट द वैल्यू। ये ध्यान रखना, इस एग्जाम्पल में नहीं सेट कर पाए थे। सो प्लीज रिमेंबर, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ बिट्स is less than 3, you can make it of 3 bits by adding 0 to the left side. That will not affect the value. Now next conversion is binary to hexadecimal. तो सेम प्रोसेस वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान दो। द बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 16। 2 to the power 4 विल बी 16। तो यहाँ पे हम 4 बिट्स का ग्रुप बनाएंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे 3 बिट्स का नहीं, 4 बिट्स का ग्रुप बनाएंगे राइट टू लेफ्ट। ये हो गया, यहाँ पे भी 1 2 3 4 हो गया। लास्ट में देखो यहाँ पे एक ही बिट बचा, तो इसको हम 4 बिट्स का बना सकते हैं बाई एडिंग रिमेनिंग जीरो। ठीक है, सो 3 0 1 हो गया। तो 3 नाउ वी हैव 3 ग्रुप्स ऑफ 4 बिट्स, 0 0 0 1, अनदर इज 0 1 1 0। ये देखो 0 1 1 0 0 1 1 0। वी आर मेकिंग द ग्रुप फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ध्यान रखना, ये एरो सिंबल दिख रहा होगा, राइट टू लेफ्ट बना रहे हैं। 0 1 1 0 and another group is what? 1 0 1 1. Now same process, we will convert these each group using binary to decimal conversion. So I am converting that 0 into 2 to the power 3, 0 1 2 3, highest power 3 आएगा, काउंट करोगे। 0 into 2 to the power 2,
प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। इसको ऐड कैलकुलेट करोगे तो 1 आएगा। ये तीनों जीरो हो जाएंगे, लास्ट में सिर्फ 1 बचा। यहाँ पे 0 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0। इसको टोटल करोगे तो 6 आएगा। ठीक है, लास्ट में 1011, तो ये 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। इस सबको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8, 8 टू 10, 10 प्लस 1 11। इसका आंसर आएगा 11। ठीक है, तो ध्यान दो, फॉर दिस ये जो लास्ट वाला ग्रुप था 0001 के लिए हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो इसकी जगह पे 1 लिखेंगे। इस ग्रुप के लिए हमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, तो इसकी जगह पे 6 लिखेंगे। 1011 के लिए हमें क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है, तो 11 की जगह पे हम बी लिखेंगे, कैपिटल बी। सो इसको लिखते हैं 0001, 0110, 1011, जो बाइनरी नंबर सिस्टम में था क्या हो जाएगा, 16B इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आई होप इट इज क्लियर। 11 A for capital, A for 10, capital B for 11. So instead of, if you're getting 11, you will not write 1 1, you will write B instead of that. So this is binary to hexadecimal. Binary to octal, we were making the group of 3 bits. Binary to hexadecimal, we are making the group of 4 bits. Okay, so similar conversions, binary to octal, binary to hexadecimal. Now vice versa, मतलब octal to binary, hexadecimal to binary. ठीक है, so this conversion now octal to binary. Okay, so octal to binary कैसे कन्वर्ट करेंगे, ईच डिजिट को हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का यूज करके बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ईच डिजिट को 5 को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का यूज करके। 5 को 2 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, क्वोशंट 1 रिमाइंडर 1, 2 टाइम्स 1 टाइम रिमाइंडर 0, फिर 2 को 0 टाइम क्वोशंट 1, और ये 101 मिलेगा। तो हमें मिला 101। फॉर 5 आई एम गेटिंग 101। 2 को देखते हैं, 2 1 टाइम 0, 2 0 टाइम 1, bottom to top 1 0। For this we are getting 1 0। So here we have to make it of 3 bits। ध्यान रखना होगा, अब ये 2 बिट्स का, ये ऑलरेडी 3 बिट्स का था तो हमने कुछ कन्वर्जन नहीं किया, लेकिन ये 3 बिट्स का नहीं है, 2 बिट्स का है, तो एक जीरो ऐड कर देंगे लेफ्ट साइड में। इसको हमें 3 बिट्स का बनाना होगा। ठीक है, देन 3 को कन्वर्ट करेंगे। 3 बिट्स का बनाना कंपलसरी है ऑक्टल टू बाइनरी में। 2 1 टाइम रिमाइंडर 0 और 1, 2 0 टाइम रिमाइंडर 1। So for this we are getting 1 1, and by so we have to make it of 3 bits. In case of octal to binary we have to make it of 3 bits, so 0 1 1 3 बिट्स का बना के ही रखोगे। अब 5 की जगह पे हम लिखेंगे 101, 2 की जगह पे लिखेंगे 010 और 3 की जगह पे लिखेंगे 011। तो आंसर होगा 523। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम में वो हो जाएगा 101 010, 3 बिट्स का बनाना जरूरी है, 011 इन बाइनरी। तो ये ऑक्टल टू बाइनरी था। ईच डिजिट को हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का यूज करके बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद सबको हम 3 बिट्स का बना रहे हैं, तब उस डिजिट की जगह पे उस बाइनरी कोड को रख दे रहे हैं। 5 की जगह पे 101, 2 की जगह पे 010, 3 की जगह पे 011 रख दिया हमने 3 की जगह पे। तो ये कन्वर्जन है व्हाट, बाइनरी टू octal to binary. In the same manner, we are going to convert hexadecimal to binary. So in case of hexadecimal to binary, same thing. Only instead of making 3 bits here, there we will make it of 4 bits. बस ये difference आएगा, बाकी same process है hexadecimal to binary. Okay, so let's start. Now this conversion hexadecimal to binary. Okay, hexadecimal to binary in this conversion A358. सेम थिंग, सब प्रोसेस सेम है। ईच डिजिट को हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का यूज करके कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको 4 बिट्स का बनाएंगे और उसकी जगह पर रख देंगे, डिजिट की जगह पर रख देंगे। तो कैपिटल ए का मतलब क्या होता है, 10। तो 10 को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का यूज करके, 5 टाइम्स 0, 2 टाइम्स
टू टाइम्स वन, फिर टू टाइम वन टाइम जीरो, फिर टू जीरो टाइम वन, सो 1010, ये 4 बिट का है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1010, फिर थ्री को कन्वर्ट करेंगे, 211, 201, तो 11, ये 2 ही बिट्स का हो रहा है, इसको 4 बिट्स का बनाना पड़ेगा बाई एडिंग 2 जीरोस, 2 जीरोस। ओके, 5 को कन्वर्ट करें, 2 2 4, 1, 2 1 2, 0, 2 0 1, सो 1 0 1, वी आर गेटिंग 1 0 1, सो 1 0 1 को हम 4 बिट्स का बनाएंगे, 0 1 0, 8 आ गया, 2 4 0 2 2 0 2 0 1, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 का बाइनरी कोड 1000। अब यहाँ पे ऑलरेडी 4 बिट्स का है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ए की जगह पे हम लिख देंगे 1010, बी की जगह, थ्री की जगह पे लिख देंगे हम 0 1 1, 5 की जगह पे लिख देंगे 0 1 0 1, और 8 की जगह पे लिख देंगे 1 0 0 0। 4 बिट्स का बनाना जरूरी है, मतलब ये कि A358 जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है, वो क्या होगा, 1010, 0011, 0101, 1000 इन बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है, ईच डिजिट को डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का यूज करके कन्वर्ट करो बाइनरी में, अगर वो 4 बिट्स का नहीं तो उसको 4 बिट्स का बनाओ, और ईच डिजिट की जगह पे उस बाइनरी कोड को प्लेस कर दो। ठीक है, तो दिस इज हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ओके, so similar type of conversion I am teaching together. So octal to binary, hexadecimal to binary conversion done. Now see this next conversion, hexadecimal to octal, hexadecimal to octal. Okay, so in hexadecimal to octal there is now we are going to use, we will use the previous conversions. Okay, कोई भी previous conversion, दो conversion का use करके हम convert कर सकते हैं hexadecimal to octal। एक तरीका है हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, दैट आई हैव टॉट हाउ टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। उसके बाद उस डेसिमल को फिर से कन्वर्ट कर दो ऑक्टल में, तो फाइनली हमें हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल मिल जाएगा। हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करो डेसिमल में, जो वैल्यू आएगी वो डेसिमल में, तो उसको फिर से कन्वर्ट कर दो डेसिमल टू ऑक्टल में। ठीक है, तो हमें बाय दिस वे हमें फाइनली जो वैल्यू मिल जाएगी हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम पहले हेक्साडेसिमल 2B7 जो हमारे पास नंबर है इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं, किसमें, इसमें कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। ठीक है, 2B7 को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो 2 × 16 टू द पावर 2, B फॉर 11, 11 × 16 टू द पावर 1, 7 × 16 टू द पावर 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 स्क्वायर 256 इंटू 2, 512 प्लस 11 176 प्लस 7। ठीक है, इफ यू ऐड ऑल दिस 2 6 8 7 15, 2 7 9 and 5 1 6 695। अब ये किसमें मिला हमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में मिला। ठीक है, नंबर फिर से वह जोड़ लेते हैं ठीक से, 2 + 6 8, 8 + 7 15 का 5, 1 कैरी, 1 1 2 2 7 9 9, और 5 1 6 695। ये कन्वर्ट किया हमने अभी हेक्साडेसिमल को डेसिमल में। अब इस डेसिमल नंबर सिस्टम को वापस ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, तो 695 जो डेसिमल में है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं, कैलकुलेट करो। सो 8 क्वेश्चन विल बी 86, रिमाइंडर विल बी 7, डिवाइड करके देखना तुम लोग। फिर 86 को डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम्स, रिमाइंडर विल बी 6, 10 टाइम्स में चला जाएगा, कट जाएगा। फिर 8 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, रिमाइंडर विल बी 2, और लास्ट में 8 से डिवाइड करेंगे 0 टाइम्स, रिमाइंडर विल बी 1। तो 1 2 6 7, फाइनली जो 2B7 था हमारा जो नंबर था मेन,
जो हेक्साडेसिमल में था उसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में, फिर उस डेसिमल को कन्वर्ट किया हमने ऑक्टल में। तो हमें क्या मिला फाइनली, ऑक्टल वाली जो वैल्यू मिली वो मिली है 1267 किसमें, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये हुआ, पहले हम हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में, फिर डेसिमल को कन्वर्ट करते रहे ऑक्टल में। सो हमें हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन विल टेक प्लेस बाय दिस वे। ठीक है, और भी कई मेथड्स हैं, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, फिर बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर लो। तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हो जो सिंपल लगे, एक सिंपलेस्ट मेथड हमने बताया। ठीक है, कैलकुलेशंस हैं तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। नाउ ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। So for this video, this is the last conversion, and rest conversion I will teach in the next video. ये सब जितने भी इंटीग्रल नंबर थे, इंटीजर्स जो नंबर्स थे, उनके लिए सारे कन्वर्जन्स मैंने बता दिए, ये लास्ट कन्वर्जन है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जितने फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, उनके कन्वर्जन बताएंगे। ठीक है, तो ये लास्ट कन्वर्जन है हमारे इन दिस लास्ट कन्वर्जन इट इज। सो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, सॉरी फॉर साउंड। नाउ लिसन, 217 वही प्रोसेस है। ऑक्टल को पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले हम ऑक्टल को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, 217, जो कि ऑक्टल में इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। तो 2 इंटू 8 टू दावर 2, 1 इंटू 8 टू दावर 1, प्लस 7 इंटू 8 टू दावर 0। इसको सॉल्व करोगे तो 64 इंटू 2 128, प्लस 8 प्लस 7 15 हो जाएगा। तो 8 8 16 7 23 2 2 4 and this is 143 will be in decimal number system. This is what in decimal number system. ठीक है, और now इस 143 को हम कन्वर्ट करेंगे इसमें हेक्साडेसिमल में। उसके लिए हमें इसको 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 16 से डिवाइड करेंगे, हाउ मेनी टाइम्स विल डिवाइड दिस नंबर बाय 16। 16 से इफ विल डिवाइड 143 बाय 16 कितना होगा, ये 7 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स। ओके, क्वेश्चन विल बी 8 एंड रिमाइंडर विल बी 15। 16 8 जा 128, सो रिमाइंडर विल बी 15। नाउ 16 0 टाइम्स, रिमाइंडर विल बी 8 8 15, मतलब 15 के लिए f लिखते हैं। तो यहाँ पे 217 जो ऑक्टल नंबर सिस्टम में था वो हो जाएगा 8f in hexadecimal number system. Okay, so for this video this much only. I have taught all the conversions for the integers. Okay, now I will come with one more video in which I will discuss all the fractional numbers conversion. Okay, so for this video this much only.